today's guest is a dance enthusiast, a teacher, and a choreographer. So, in the season of what I call the uplifters, I came across Nikhil's profile on Facebook and Instagram, and I was like, who is this gentleman who's smiling throughout? And हर जगह एक तो मुस्कुरा रहे हैं और साथ में नाच कर रहे हैं और he has a following of some 2 million people. तो मैंने थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया and I got in touch with Nikhil who very willingly responded. And what I've gathered about him is that Nikhil took to dancing at age 16. Initially, the support he received was very encouraging. However, as he took to dancing as a profession at age 20, the support waned. And along with it, his father's encouragement, who incidentally did not talk to him for 6 whole months. Hailing from a successful business family of Surat, Nikhil was relentless in his pursuit. And aaj ke din, he owns his own 3,000 feet studio. जो चीज मुझे निखिल के which drew me to Nikhil was not just his smile and his wonderful dance steps. It was also the fact that happiness spread करने में वो classes करते हैं सिर्फ 99 rupees a month में. So I was very intrigued with that. Nikhil, welcome to Life Begins at 40. Thank you so much. Thank you so much. So why dancing as a profession at the young age पे? Oh, first of all, I'm very thankful that you have invited me today here. और मुझे बहुत I'm very excited कि भाई मैं कुछ बता पाऊंगा and कुछ definitely सीख पाऊंगा किसी से. So why dance? वो इसलिए था कि that really gives me a joy and more than dancing, teaching gives me a more joy. So मुझे वो बहुत प्यारा लगता है और school days से I was inclined towards cultural activities and sports. So a very average kind of a student in academics, but so ऐसा था. So you became extraordinary at dance. Yeah, you can see that. So how did you zero in on the type of dance that you like? So dance type there are multiple styles and there all depends on actually mood. So sometimes if you're clubbing and you are with your partner or with your friends, you might like to do something like a bachata and salsa, which is very sensuous form of dancing. But sometimes when you're with your friends and only in a wedding, then you want to have that proper Ganpati dance happening. So the genre of dance or the style of dance absolutely depend on the mood, the place and the people you're with around. So that makes a lot of difference. आपका favorite dance form क्या है? और आपने उसको zero in कैसे किया? So मेरा favorite dance form definitely salsa और bachata है. पर हम इंडियंस हैं, हमारे खून में बॉलीवुड बसा हुआ है. मतलब हम सुबह से लेकर रात तक जो करते हैं कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड से और क्रिकेट से इंस्पायर होता है. बिल्कुल ठीक बात है. तो वो बॉलीवुड तो डेफिनेटली अंदर था ही, बट समथिंग आई वाज हैविंग अ क्रेविंग कि कुछ एक ऐसा होना चाहिए कि वेयर यू कैन जस्ट create your own moves, create your own style. So salsa and bachata lets you do that, to create your own style. So those are one of my favorite moves, favorite dance forms, I'll say. So how would you say dancing has shaped and transformed your life? Oh, I think whatever I am today and whatever, if people see me smiling or if people see me as a humble person, this is just because of dancing. And because of the journey which I have gone through. So क्या होता है कि आप हमेशा सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ रहे हो, तो कभी-कभी गिरना इम्पोर्टेंट है. और मैं स्पोर्ट्स में भी, जैसे मैंने बताया, I was very much inclined towards sports. तो I push to my son also कि please play sports, and he's also very inclined towards football and everything. So जो आप पूछ रहे हो उसमें पॉइंट ये होता है कि डांस कैसे उसने शेप किया मेरी लाइफ को. आपको पता चलता है कि आपको रोज जीतना है और रोज हारना है. तो ये जो वर्ड आता था ना कि इंसान डिप्रेशन में आ गया, कोविड था, ऐसा था, वैसा था, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हेन यू आर रेडी टू लूज एवरी डे एंड रेडी टू विन एवरी डे, तो आई थिंक यू विल टेक एवरी डे एज अ चैलेंज एंड एवरी डे हैज अ ब्लेसिंग आल्सो, बोथ टुगेदर. सो डांसिंग फॉर मी इज अ चैलेंज एवरी डे एंड इज अ ब्लेसिंग एवरी डे. So it's today whatever it is, and I don't know what's going to happen tomorrow.
and I live also that way regarding to with my family, with my friends के आज करते हैं, चलना कल क्यों सोचना है, कल का कल देखेंगे, आज का आज जरूर करते हैं. अच्छा, तो एक चीज बताओ, चैलेंज कैसे है? चैलेंज ये है कि बिकॉज व्हेन यू आर इन अ क्रिएटिव लाइन यू कैन नॉट बी वेरी मोनोटोनस. आपको क्रिएटिव रेगुलरली होना पड़ेगा. So people say, because I'm a choreographer, see if I was only a dancer, I just have to follow someone. So that can be a physical exertion for me in a day, whole day thing. But when you are choreographing something, when you're creating something, it is a physical as well as a mental exertion together. But dance एक इतनी beautiful चीज है कि अगर आप उसको creativity के साथ, जैसे अगर मैं 3 दिन डांस नहीं करूंगा तो मुझे लगता है मैं थक गया हूँ. So थकान आराम की है, थकान काम की नहीं होती है. So if Sunday is the most boring day because you're not working, but now because I have a son, I have a family, I love to spend time with them, love to spend time with my friends. So वो definitely एक हो जाता है कि चलो एक दिन ले लेते हैं, एक्स्ट्रा टाइम बच्चों के साथ मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम घर वालों के साथ या फ्रेंड्स के साथ मिल जाएगा. पर वो पूरा हफ्ता या पूरा महीना या पूरे साल, इतने साल मैंने जिस दिन भी मुझे लगा है ना कि मुझे बस करना है, तो मतलब उस दिन मुझे लग रहा था कि अब मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा अगर मैं बस कर दूंगा. तो मैं मेरी वाइफ को हमेशा ये बोलता हूँ कि जो भी मेरा ऑफिस होगा, मेरी लास्ट ब्रेथ वही होनी चाहिए, घर पे नहीं होनी चाहिए, मेरे को ऑफिस में होनी चाहिए. सो इट शुड फील लाइक कि जीते जीते रहे हमेशा, मतलब यू शुड नॉट फील गोइंग डाउन. सो डांस दैट वे हैज शेप्ड अ लॉट. वंडरफुल फिलॉसफी. आपके स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, कहाँ ज्योग्राफीज में है और क्या उम्र के हैं? बहुत जन ये चैलेंज नहीं लेते कि 3 साल के बच्चों को सिखाने का. एंड आई लव किड्स, सो मैं 3 साल के बच्चों से सिखाना शुरू करता हूँ. एंड यू हैव टू बी अ किड विद अ किड. अगर आप उनको बताओगे नहीं कि, अब जैसे मैं उनको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि जो डांस अच्छे से नहीं करेगा उसको यहाँ पे रेड रेड टोमेटो मिलेगा. सो टोमेटो इज, ये ऐसे होगा तो टोमेटो बन जाएगा, ये रेड रेड हो जाएगा और मैं उसको डाल के खा लूंगा. तो ये सारी गेम्स मैंने प्ले विद देम. So they incline towards you. वो सुनते हैं, वो फॉलो करते हैं सारी बातें. So और कोई अगर बोलता है कि नहीं यार छोटे बच्चों को हैंडल करना मुश्किल है, छोटे बच्चों को हैंडल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बल्कि मैं बोलता हूँ कि उनके साथ you will relive that childhood या बचपना या innocence तो उनका हद लेवल का है. मतलब आप innocence उसके अलावा किसी से वो नहीं कर सकते. And बड़ों से बड़े there is no limit. So I have taught even to 80 years old, 85 years old. तो जिसकी सीखने की इच्छा है वो कोई भी सीख सकता है, ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है. और जियोग्राफिकल वाइज, सो समटाइम्स जैसे कोविड इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो आज उसकी वजह से आप और मैं बात कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से जियोग्राफिकली कोई बैरियर नहीं है अभी. हाँ, चैलेंज ये था, अगेन चैलेंज ये था कि आप ऑनलाइन उसको कैसे एंटरटेनिंग और कैसे ये बनाओ कि सामने वाले को समझ में आ जाए जो आप सिखा रहे हो. तो क्योंकि बोलते हैं डांस कैसे होगा, हाँ आप इंग्लिश पढ़ा दोगे, आप मैथ्स पढ़ा दोगे, हाँ डांस कैसे ऑनलाइन सिखाओगे. सो पर वो आपको उसके साथ वो स्ट्रगल को या वो चीज को आपको अडेप्ट करना पड़ता है. सो वो कितनी पुरानी कहावत है कि जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसको बदल देता है या समय उसको पीछे छोड़ देता है. तो इट इज द टाइम टू चेंज, इट इज द टाइम ऑफ टू एक पूरा evolution हो रहा है around the globe and things are changing. You have to change with it. अब उसके पकड़ के नहीं बैठ सकते कि मैं पुराने मेथड से ही सिखाऊंगा, पुराने मेथड से ही काम करूंगा खाली. And not only about method regarding work, I think it's method with your relationship with your family everywhere. तो ये 99 रुपीस की जो क्लास आपने शुरू की है, ये भी is this also an effort towards that? मतलब कौन करता है आजकल के जमाने में, सब पैसे कमाने में लगे हैं. 99 रुपीस की क्लास और पूरे महीने की. वो इसलिए भी है कि जहां तक हम मैक्सिमम पहुंच जाए. और एक क्या होता है, एक इकोनॉमिकल बैरियर डेफिनेटली हर एक की लाइफ में आ जाता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं. और मुझे लगता है कि डांस एक ऐसा हैप्पी गिफ्ट है जो हर कोई डिजर्व करता है. बिल्कुल. और मैं एक चीज में ये भी मानता हूँ कि फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती है. सो इसीलिए इतनी वैल्यू रखो कि वो उस चीज को वैल्यू भी करे
और उसको एकदम फॉर ग्रांटेड भी नहीं ले ले. सो ऐसा कुछ करें कि हम मास तक पहुंच सकें. सो फाइनेंशियली वी विल बी या इकोनॉमिकली वी विल बी हैप्पी दैट अगर मास पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली बिजनेस विल बी गुड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. पर हाँ, कोशिश ये है कि ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा तक उस पर कर सके. तो मैं उसको टैग नहीं करूंगा कि समाज सेवा है, बिल्कुल नहीं. मैं भी काम कर रहा हूँ और जो सीख रहे हैं उनके लिए भी वो अच्छा है कि 99 रुपीज में पूरे महीने में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है. निखिल, आप डांस फ्रेटर्निटी का एक हिस्सा हो. आई एम श्योर आप दूसरे लोगों के साथ भी एंगेज करते होगे, कोरियोग्राफर्स और दूसरे लोग हैं. तो दो क्वेश्चन है. पार्ट ए की, क्या डांस फ्रेटर्निटी का भी कोई एसोसिएशन है? और पार्ट टू कि आप कहाँ पे डांस फ्रेटर्निटी को देखना चाहते हो, क्या चेंज देखना चाहते हो आगे जाके इस फील्ड में? सो डांस फ्रेटर्निटी का कोई एज सच कोई एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि इट्स अ वेरी क्रिएटिव फील्ड. इट्स अ वेरी क्रिएटिव फील्ड. हर एक का अपना अपना एक जोन होता है. सो दे आर वेरी गुड डांसर्स देन मी इन माय क्लास आल्सो. बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मुझसे भी बेटर डांस करते हैं, पर वो उनका क्रिएटिविटी लेवल अलग है, मेरा क्रिएटिविटी लेवल अलग है. सो फ्रेटर्निटी वाइज बहुत वेरी करता है. इट्स अ वेरी ह्यूज ग्राफ कि कोई ऐसे करता है, वो करता है. पर डांस फ्रेटर्निटी को या कोरियोग्राफर्स को या डांसर्स को एक तो ये मैसेज मैं जरूर दूंगा कि प्लीज बी वेरी जेन्युइन टुवर्ड्स योर वर्क. वेरी जेन्युइन, मतलब वो एक जरूर करो. एंड सिमिलरली मैं सामने पब्लिक या क्राउड को भी ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज टीचिंग यू. ही और शी डजंट मैटर कि वो क्या कर रहे हैं. इट कैन बी एज अ टीचर ऑल्सो, क्योंकि वो टीचर हैं, इसीलिए उनको वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देना चाहिए. क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, मुझे पता है लोग ऐसे बुलाते थे, अरे डांस वाले भैया आप करा दोगे क्या हमको. हाँ, दिस इज द लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड. सो आप सोचो, वो उस लेवल का आप किसी एक गुरु को, एक टीचर को वैल्यू नहीं कर रहे हो. सो वो बहुत मुझे चुभता था. सो आई हैव बीन अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन रिगार्डिंग टाइमिंग्स के. आप मूवी देखने जाते हो तो आप डेफिनेटली लेट नहीं होते हो. आप कभी एयरपोर्ट लेट पहुंच करके देखो तो आप डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा मिस कर दोगे अगर आप एयरपोर्ट लेट पहुंच रहे हो या मूवी लेट जा रहे हो. तो आपको ये बात पता है. तो आप जब क्लास के लिए आ रहे हो तो क्यों लेट आ रहे हो? व्हाई आर यू टेकिंग द टाइम ग्रांटेड ऑफ अ टीचर? तो वो चीज के लिए मैं बहुत बदनाम था मेरी सिटी में कि लेट आएंगे तो ये निकाल देंगे क्लास से, अंदर नहीं आने देंगे, वैसा हो जाता. तो ये आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस, क्योंकि जब वो सीखना चाहते हैं और उसी के साथ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आगे क्या सीख ही पाएंगे अगर ठीक से ना कर सके. So I think जितने भी मेरे जूनियर कलीग्स हैं या जो भी है, मैं उनको हमेशा से समझाता हूँ, आप पहले से उनको अगर वो लेवरेज लेने दोगे ना कि आप लेट आ रहे हो, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं करके, तो फिर वो चलो कोई बात नहीं हर कोई चलाएगा, क्योंकि आप उनको अलाउ कर रहे हो वो करने के लिए. सो निखिल, जब आप डांस नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते हो? मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है. आई लव टू ड्राइव. मतलब मैं अकेला कॉफी लेके बहुत लंबा ड्राइव कर सकता हूँ आराम से. मतलब 30-40 kilometers of a good drive and come back आराम से. That gives me a good 45 minutes of a break. Anything. I love to play cricket. I love to play table tennis. I love to spend a very good quality time with my son. So we both go on a drive. We both go on a coffee together. So ये चीजें होती रहती हैं. So this is my best. What do you guys talk about? Boy to boy talk. So, I always want to listen to him more. कि वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या फील करता है, उसके फ्रेंड्स के बारे में क्या बोलना चाहता है, टीचर्स के बारे में क्या बोलना चाहता है. So I have always tried to make him simple कि भाई जितना हो सके आप humble रहो कोई भी चीज में. Because he is 9 years old now. He is going to become a teenage very soon. मतलब 2-3 साल में टीनेज में आ जाएगा. फिर टीनेज का एक अलग एटीट्यूड पैदा होता है because they get influenced only by the friends, not by the family. So उसके लिए मैं उसका बेस पहले से थोड़ा ऐसा करना चाह रहा था कि आप इन्फ्लुएंस किसी से भी हो बट डोंट फॉरगेट योर रूट्स. कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कुछ भी चीज ट्राई करने में, कुछ भी किसी के साथ जाने में आने में प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं है. The problem is you try but you should know what you are trying to do. So, उसे बचपना नहीं छीनना उसका, क्योंकि वो बचपना बहुत इनोसेंट है. लेकिन साथ साथ I think it's a careless care what as a father I have to take. And you sound like a great father and friend already.
I hope so. I turn out to be a great friend to my son. निखिल, एक चीज और बताइए, यू हैव लाइक ओवर 35,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यू हैव अबाउट 200,000 ऑन फेसबुक. तो आपको क्या लगता है कि व्हाई आर सो मेनी पीपल फॉलोइंग यू? आप उनको क्या चीज देते हो जो उनको इंस्पायर करती है टू फॉलो यू? I think it's the value addition in life. So मेरे अगर मैं ट्यूटोरियल सी, बहुत प्यारे डांसर्स हैं बाहर, बहुत सारे अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं, मतलब अलग लेवल, एंड आई अडोर देम. सी पर वो चीज कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, उनको अच्छा लगता है, एंड मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है. और मेरे वो करने से एक ऐसी बेसिक लाइन को मैं टच कर रहा हूँ जहाँ हर दूसरे घर में लगता है कि हाँ यार, ये मुझे इतना बेसिक मुझे आना चाहिए, मेरा मिस हो गया लाइफ में, मैंने सब कर लिया, मतलब आई हैव अचीव वेरी गुड इन लाइफ, बट मेरा कोई डांस नहीं आता या मुझे ये मूवमेंट नहीं आता. तो जस्ट बिकॉज वो छोटे छोटे स्टेप्स उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनको एक जॉय देते हैं, इसीलिए लोगों शायद फॉलो करते हैं. तो ये मुझे लगता है बिकॉज द कमेंट्स आई रीड, द पीपल, द वे आई डू इट. जैसे बहुत जन बोलते हैं, अरे मैंने सुबह आज पहला आपका रील देखा, शाम तक तो सारे रील देख लिए, या सुबह मैंने आपका पहला वीडियो देखा, शाम तक तो सारे देख लिए. सो उनको वो, क्योंकि वो कनेक्ट बैठ रहा था ना वो साथ में कि अच्छा चलो ये देखो, अच्छा ये भी कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं. तो आई थिंक जस्ट बिकॉज आई एम एडिंग वैल्यू टू समवंस लाइफ और समवंस डेली रूटीन ऑल्सो, that is the reason people are loving me back so much, and I'm so blessed with that. Beautiful. Have you ever done these competitions on Instagram कि आज मैंने ये स्टेप सिखाया, अब तुम जहां भी हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे किचन में हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो वो ये 30 सेकंड का स्टेप रिकॉर्ड करके भेजो मुझे? किया नहीं था, पर आइडिया बहुत अच्छा आपका, डेफिनेटली इसको यूज करूंगा अभी कभी ना कभी सुन में. आई थिंक अगर आप ऐसे ही मीठी मुस्कुराहट के साथ बोलेंगे तो all your followers will do this for you. So Nikhil, क्या dancing formats आप सिखाते हैं, and are these dancing formats in offline classes or online classes? Can all be taught offline also? Yes. Can I rephrase my questions? Can all be taught online also? Absolutely, it can be taught online. There's nothing, it's just that you have to be more patient. So because of online, I think I have become a better teacher because I have got more patient than before because I'm teaching online. So I know it's difficult for the सामने वाला बंदा also कि right मैं बोल रहा हूँ तो right समझो, left समझो, तो वो उनके लिए भी difficult है क्योंकि it's a mirror effect और mirror image होता है, सब होता है, बहुत सारी technical चीजें हैं online में. पर ऐसा कोई नहीं है. अब जैसे मैं बहुत, जैसे आई टीच बॉलीवुड, आई टीच कंटेम्पररी, आई टीच सालसा, आई टीच बचाता, आई टीच बिट ऑफ भांगड़ा. सो देयर आर मल्टीपल स्टाइल्स वी डू. जैज हो गया, हिप हॉप हो गया, तो ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स, और ये सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. आप अपने आप को खुद कैसे सिखाते हो ये सब अलग अलग फॉर्मेट्स? मैंने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, पर जैसे कि सालसा बचाता, देयर वर सम फ्यू गुड आर्टिस्ट जो इटली से बॉम्बे आते थे कुछ महीनों के लिए, तो मैं उनके 2 वर्कशॉप्स अटेंड कर लेता था, वो कर लेता था. तो आई बिलीव व्हिच आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ इज आई एम अ वेरी क्विक लर्नर. फर्स्टली कि मैं फटाफट मैं देख के भी सीख जाता हूँ. प्लस आई विल नेवर गेट ऑन द फ्लोर एंड प्रैक्टिस, आई विल ऑलवेज क्रिएट समथिंग इन माई माइंड. मतलब अगर मैं बैठ रहा हूँ ना तो मुझे उठने की जरूरत नहीं है. जो मैं रील्स बनाता हूँ, मैं यहाँ पे गाना सुनता हूँ ये मेरे कैबिन में, और मेरे बाजू वाले स्टूडियो में जाके, मतलब द नेक्स्ट रूम, आई जस्ट गो मेक अ रील एंड कम बैक इन 1 minute. सो देयर आर ऑफिस में जो मेरे साथ मेरी टीम है, सो उसमें यंग गर्ल्स हैं बहुत सारी, तो उसमें उनको लगता था अरे सर इतनी जल्दी रील बना ली. हमको तो पहले बाल बनाने पड़ते हैं, मतलब बाल बनाने वाला मेरा पंगा नहीं है, तो पहले बाल बनाने पड़ते हैं, पहले ये करना पड़ता है, फिर वो करना पड़ता है, फिर 10 टेक लेते हैं, वो करते हैं. तो वो मेरे लिए वो क्रिएटिविटी ही चल जाती है. तो ये मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड दैट वे आल्सो कि इट डज नॉट टेक मी टाइम टू मेक एनी रील और एनी स्टेप. सो व्हेन वी कोरियोग्राफ फॉर वेडिंग्स आल्सो ना, तो वेडिंग्स के लिए क्या होता है कि पहले सॉन्ग्स डिसाइड हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, फिर वापस वेडिंग की जब प्रैक्टिस शुरू होती है तब लास्ट मिनट पे सॉन्ग बदल जाता है. मैक्सिमम मैं तो कल मैं सिखाता हूँ, ये नहीं मैं उसी टाइम सिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ बेस बहुत क्लियर होते हैं कि अगर आपको म्यूजिकलिटी पता है ना,
अगर म्यूजिक का सेंस है तो आप एक चीज, एक स्टेप्स बहुत सारे सॉन्ग्स पे कर सकते हो. तो ये चीज मैं अपने लाइव सेशंस में समझाता हूँ, मेरे किड्स को, एल्डर्स को, जितने भी जन सीख रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि ये स्टेप आपको आता है तो डोंट थिंक कि आपको एक गाने पे डांस करना है. आपको डांस करना आना चाहिए. गाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. So you can use these steps on this song also, this song also, this song also. So हम We'll जब practice do करते some quick fire questions now, Nikhil, to understand a little more about you. तो आपका favorite food? हैं, घर का खाना. The next car you want to buy? बहुत confusion से कार के अंदर it can either Mercedes or Audi, दोनों से कोई एक. और आपका favorite sport? Cricket. What quality makes you your students' favorite? My smile and my humbleness, I think. क्योंकि Okay. मैं मेरे छोटे, जो मेरे से बहुत छोटे हैं, मैं उनको भी आप कह के ही बुलाता हूँ, because I think if I don't give respect to any XYZ person, वो reverse आने वाला है. और एक स्टूडेंट में आप क्या देखते हैं which inspires you and makes them your favorite? So the willingness to learn and not stop. मतलब वो satisfaction नहीं आना चाहिए कि हाँ मुझे सब कुछ आता है. आज तक मुझे भी सब कुछ नहीं आता. आज तक जो मुझसे सीनियर्स हैं, जो एक्सट्रीम वर्ल्ड में इतने वो हैं, वो भी हर टाइम सीखते ही रहते हैं. सो कोई भी स्टूडेंट जब ये तैयार होता है ना कि हाँ सर आप बताओ, हम करेंगे, हम सीखेंगे, सो दैट गिव्स मी अ मोर पुश कि चल और बेटर कुछ करते हैं, और बेटर कुछ करते हैं. आपकी फेवरेट सिटी? गोवा. Again, see, it's a very moody thing. So I love Goa. I love Udaipur, and I have been to Kerala. I have been to many cities, and they are wonderful cities. I think हर एक जगह का अपना एक अलग एसेंस है. और मुझे ना कोई शौक नहीं है अब्रॉड घूमने का, बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है इंडिया इतना सुंदर है, मतलब कहीं बाहर जाने की कभी जरूरत ही नहीं है. Though I have been to Maldives, I have been to Dubai and one or two countries, but मुझे लगता है इंडिया से ऐसा कुछ नहीं है. Ladakh, I have been to Ladakh. Oh my God, it is another level of beauty. Ladakh, Kashmir, I have been to those places. Another level of beauty. I agree with you. हमारा incredible इंडिया इतना खूबसूरत है कि हम लोग को बाहर सुंदरता ढूंढने के लिए नहीं जाना, हाँ, पर दूसरे कल्चर्स एक्सपीरियंस करने और उनसे सीखने जाने का एक अलग चार्म है. जी. सो अब मैं एक चीज और पॉइंट करूंगा. अगर कोई भी बाद में ये सब, जब हम वीडियोस आपके रिलीज होंगे और सब देखेंगे, आई एम श्योर बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, तो बहुत जने ना नेटफ्लिक्स बहुत देखते हैं अभी, या दूसरी सीरीज बहुत देखते हैं. सो मेरा एक रीजन ये भी होता है, मैं जब कोई सीरीज देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि जैसे कि स्पेन का कल्चर क्या है, तो सीरीज के अंदर दिखता है कि स्पेन में क्या कल्चर चलता है. निखिल की फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? कॉफी, ब्लैक कॉफी. जो अभी पी जा रही है? अभी ग्रीन टी पी जा रही है. अच्छा, अभी ग्रीन टी पी जा रही है. ऑनलाइन क्लास ज्यादा पसंद है कि ऑफलाइन? दोनों इक्वली बहुत प्यार है. सनराइज और सनसेट्स? सनराइज. One thing you as a family love to do? Just give them a very good quality time. And your daddy's boy or mama's favorite amongst all brothers and sisters? I am no one's favorite. क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई है, वो पहला बच्चा है घर का, तो ज्यादा लाड़ प्यार उधर मिला है. मेरी एक छोटी बहन है, वो छोटी है, तो उसको लाड़ प्यार अलग मिला है. So आप अपने फेवरेट हो? काइंड ऑफ. अभी तो मैं मेरे बेटे का बहुत फेवरेट हूँ. सो माय सन इज वेरी मच फाउंड ऑफ मी. How sweet is that? Of course, of course. That's being a true winner. Yeah. So, Nikhil, where do you see your dance studio in 5 years? So the ultimate goal is to reach maximum people we can. मतलब जितने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं. And thanks to this online platforms and online thing right now, कि हम लोग
के पास कोई लिमिट नहीं है पहुंचने की. So I'm just trying every day to create a very good content on online, reach more people and very authentically. So I don't want to push कि हमको यहाँ पहुंचना है, इतने followers लाने हैं या इतना numbers cross करना है. It's just that मैंने जैसे बोला, it's adding value to people's life, and next 5 years I just see that कि 5 सालों में हम maximum लोगों तक पहुंच सकेंगे तो nothing like. This is what the target is. There is no number set, क्योंकि नंबर्स होते हैं ना तो फिर आप शायद अपनी ऑथेंटिसिटी कहीं छोड़ दोगे. तो मुझे वो नंबर सेट करना नहीं समझ में आता है. मुझे लगता है कि नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, रुको मत, तो वो अपने आप हो जाएगा. तो अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी लोगों को लगता है अच्छा निखिल आज यहाँ इंटरव्यू दे रहा है, हम आपसे मैं बात कर रहा हूँ, या हम इतने फॉलोअर्स XYZ दे रहे हैं, तो वो फॉलोअर्स ये पैंडेमिक की वजह से नहीं है, ये 16-17 साल की मेहनत की वजह से है. बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस गेन किया, आपने वो धीरे धीरे सिखाना समझ में आया कि नहीं, लोगों को बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है सिखाना. पहले आप सीधा ये मत करके दिखाओ जो आपको आता है, आप ये बताओ जो आप उनसे करवा सकते हो. सो एक सॉन्ग की कोरियोग्राफी करते हैं तो शायद मैं आपके लिए अलग करूंगा, मेरे बेटे के लिए अलग करूंगा, मेरी वाइफ के लिए अलग करूंगा, सेम सॉन्ग, क्योंकि मुझे वो देखना है कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे वो नहीं देखना कि मैं क्या अच्छा करा सकता हूँ. सो अगर वो चीज हम समझ जाएंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा. बहुत खूबसूरत. ये this is a point that I never thought of, and very well put. Yes. So a lot of choreographers miss that. They want to teach what they can show. No, but I think we have to teach what the person who's going to perform it can perform. You know, शादी में आप फूफा जी को ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से स्प्लिट मार के वहां जाओ. तो आप इमेजिन करो वो कैसा लगेगा. वो डिपेंड करता है फूफा जी कितने फिट है और कितने यूथफुल लुकिंग है और वो कर पाएंगे कि नहीं. या तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भी कितना आप उनको अच्छा दिखा सकते हो. निखिल, एक चीज बताइए, where do you see yourself once you are 40? You know, my channel is called Life Begins at 40. 40 के बाद निखिल क्या डिफरेंस सोचता है, या क्या सोचते हो आप कि मैं वाइजर होऊंगा और मैं बेटर होऊंगा, और इन एनी एस्पेक्ट? वाइजर तो नहीं पता मुझे. वाइजर का तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि परसों भी एक बेवकूफी की थी. तो वो तो आई थिंक इट्स अ डेली प्रोसेस कि परसों भी ये बेवकूफी की, क्यों बोला था या क्यों ऐसा किया था. सो वो चीजें हो जाती है. दैट इज गोइंग टू बी देयर. आई थिंक जब तक लाइफ है तब तक वो रहने ही वाला है. वाइजर तो आई एम नॉट श्योर, बट यस, what I was at 30 or what I was at 25, at 38 I'm more calmer. I'm very calm down. So मुझे 40 पे शायद मुझे और काम होना है. मतलब I have to be in very much peace with myself. Be very aspiring, but also with peace. I don't want to be someone who's taking so much of stress in life, and because of my stress my family is getting stressed out, my friends are getting stressed out. So and this is my daily प्लान के आई हैव टू बी मोर काम, यू नो, स्पीक उतना ही बात करो जितनी जरूरत है, ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है. तो ये कोशिश रहती है अभी. एंड आई थिंक 40 जब मैं पहुंचूंगा तो मैं और कामर हो जाऊंगा, आई विल बी मोर रिलैक्स्ड. I look forward to meeting that Nikhil also. So Nikhil, it's been a wonderful chatting with you. Thank you for your time. And do you want to... मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ये एक अगेन इट वाज अ ब्रीथर, क्योंकि पूरे दिन आप एक अलग हैसल में रहते हो. तो ये एक ब्रीथर था, एक पूरा फ्लैशबैक था लाइफ का छोटा सा. And would you like to tell our viewers to like, subscribe and share? I think everyone has to like, subscribe and share to your channel for sure. क्योंकि जो आप कर रहे हो ना, मतलब आप अलग अलग पर्सनालिटीज को लाके अगर आप उनकी लाइफ से एक्सपीरियंस दे रहे हो लोगों को, तो आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस व्हाट दे गेन, जी, वो बोलते ना कि जो समझदार होता है वो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है. आई एम श्योर हर किसी ने, मैंने या किसी और ने बताया होगा कि क्या गलती की हमने लाइफ में. मैं जैसे बता रहा हूँ परसों ही कोई बेवकूफी की होगी तो फिर मुझे बाद में लगता है तो अगर कोई दूसरों की गलती से सीख लेता है वो ज्यादा समझदार है. सो आई थिंक एवरीवन हैज टू फॉलो, लाइक एंड शेयर योर चैनल, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि यहाँ से हमको, इस चैनल से हमको लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत सारा मिल रहा है,
जो आपको एक्सपीरियंस किए बगैर आता नहीं है, और अगर दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख गए ना, तो आप वैसे ही बहुत समझदार हो जाओगे। आज तक किसी ने मेरे चैनल के लिए इतने डीप और मीठे शब्द नहीं बोले, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। I mean it, आई एम फीलिंग ऑनर्ड। मैं आपको एक शो बताऊंगा जो मैंने होस्ट किया था विद, इट वाज कॉल्ड एज वंस हू बिलीव्ड। सो मैं आपको भेजूंगा वो, और मैं चाहूंगा कि कभी फ्यूचर में मैं उसका कुछ एक वर्जन लाऊंगा, तो आप मेरे गेस्ट हो जाओ। How wonderful would that be? We start with you and then someday we end together. So thank you again, Nikhil. And I wish you much success. I wish all your dreams come true. And I do wish that your bond with your son goes stronger each day. Thank you. Thank you. God